Good morning, students. Today we are going to study the last part on this chapter as such, the family Liliaceae, in the chapter Morphology of Flowering Plants. Now let us talk about this chapter as such. Liliaceae, it is well known, it comes in family called as lily. Lily is a very famous flower. Now it represents it is actually a representation of a monocotyledonous plant, characteristic monocotyledonous, plant as such. Okay, now we will be studying about vegetative features of this family, then floral characters of this family. Finally, with floral formula and floral diagram, we will be concluding. We will be also talking about the economical importance of this family as such. So let us start with the vegetative features of this family as such. Vegetative characters. Okay. Vegetative characters. This is a herb with perennial underground parts used as a storage organ in form of corms, bulbs and underground corms, bulbs and rhizomes. We are talking about vegetative characters at present. So mainly the plant is herb with perennial underground. It is a kind of storage organ, form of corms, bulbs and rhizomes. Now, inflorescence. Inflorescence is usually cymose or solitary with cymose or solitary as such. Okay, this is inflorescence. Then we will be talking about floral characteristics. Floral characters. Firstly, we will be talking about leaves also. Let us first of all talk about the leaves. Actually, it should have come in the vegetative character itself. Leaves are generally exstipulate. Exstipulate means stipules are not present. Then it is mostly basal. बेस में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली बेसल होते हैं, एक्सट्यूपुलेट होते हैं, लीनियर लीव्स होते हैं. लीनियर का मतलब होता है जैसे ये मिड रिब है और ये इस तरह की लीव्स, इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं. ऐसी लीव्स हो तो ये इसको बोलते हैं लीनियर, इस तरह की लीव्स को. तो एक्सट्यूपुलेट होती है, मोस्टली बेसल होती है लीफ, लीनियर होती है, एंड देन इट इज़ alternate or with
आप जानते हो मोनोकॉट की लीव्स है तो रेटिकुलेट वेनेशन नहीं हो सकता, इसका कौन सा वेनेशन होगा? पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। तो ये लीव्स के बारे में हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट अस टॉक अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। Floral characters. Now, in floral characters, perianth is present. It consists of sepals and petals combined together. That is the reason why it is called as 3+3. In a tube-like structure, in a tube-like form, having valvate estivation. Valvate estivation is present. आप जानते हो valvate estivation में जो एंड्स होते हैं, मार्जिन्स होते हैं सेपल्स और पेटल्स के, वो एक दूसरे को टच नहीं करते, तो वॉल्वेट एस्टिवेशन भी प्रेजेंट होता है। इसको हम टर्म देते हैं पेरियंथ। यहाँ सेपल्स और पेटल्स अटैच होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और एस्टिवेशन होता है वॉल्वेट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंड्रूशियम, क्योंकि सेपल्स और पेटल्स तो एक तरह से हो ही गया। फ्लावर के एक और इम्पॉर्टेंट बात हम बताना चाह रहे थे फ्लावर में, इसका जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। मॉर्फिक, ये सिमेट्री है, आपने पढ़ा है इसके बारे में इसी चैप्टर में। आई वाज टोल्ड यू अबाउट there are two kinds of flowers, actinomorphic and zygomorphic. So this has a symmetry, actinomorphic flowers, and it is bisexual, that is both male and female organ are present. So ये हो गया। Now let us talk about androecium. एंड्रूशियम 3+3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 3 और 3 स्टेमेंस प्रेजेंट हैं, और इसमें जो कंडीशन है वो एपीपेटालस है। एपीपेटालस का मतलब ये होता है पेटल्स के साथ अटैच रहता है, तो यही कंडीशन हो गई एपीपेटालस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट गायनीशियम। गायनीशियम में it is superior ovary is superior, trilocular with exile placentation प्रेजेंट होता है इसमें, विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये हो गया एंड्रूशियम और गायनीशियम। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रूट्स और सीड्स के बारे में। फ्रूट्स, जो हैं इसके एंडोस्पर्मस होते हैं, दैट इज एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, परसिस्टेंट होता है एंडोस्पर्म सीड्स में। और सीड्स जो हैं सीड्स में देखेंगे, सीड्स जो हैं वो कैप्सूल भी है, रेयरली इट इज बेरी,
रेयरली बेरी। अब इसके फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल ये होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट का सिंबल, क्योंकि प्लांट बाइसेक्सुअल है यानी कि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, तो ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, और साथ ही साथ पेरियंथ जो है वो 3+3 है, और एंडोशियम भी 3+3 है, साथ में एपिपेटालस कंडीशन को रिजेंबल कर रहा है। गाइनीशियम है, ट्राइकार्पिलरी, ट्राइलॉक्युलर है, और नीचे आप देखिए बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं गाइनीशियम में, तो नीचे सिंबल बना हुआ है, सुपीरियर ओवरी का सिंबल है ये। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। नाउ लेट अस ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम। ये बाहर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कंडीशन पेरियंथ की, एक तो 3 ये हो गया, ये मदर एक्सिस हो गई इसकी, ये अंदर की तरफ से ये अंदर अरेंज है, ये अलग अलग वो दिखा रहा है, पेरियंथ है, ये पोजीशन दिखा रहा है। 3+3 है, इसका मतलब सेपल्स और पेटल्स 3 और 3 अलग अलग हैं, 1 2 3 बाहर, 1 2 3 अंदर, तो ये पेरियंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कैलेक्स और कोरोला यानी कि सेपल्स और पेटल्स जो यूनाइटेड हो गए हैं इसमें। फिर एंड्रोशियम भी यहाँ पे 3+3 है यानी कि 6 है, तो एक और एपिपेटालस कंडीशन है, तो ये जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको। ये एंड्रोशियम हम बना रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 6 स्टेमन्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। और ये हो गया। बीच में आपका गाइनीशियम दिखाएंगे, ट्राइलॉक्युलर है, तीन, और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। अगर गाइनीशियम को बाहर से दिखाएं, बहुत अंदर छोटा बना हुआ है, तो आप इसको ऐसे देखेंगे। गाइनीशियम ये है, ये हो गया ट्राइलॉक्युलर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओव्यूल्स, आप देख रहे हो अंदर की तरफ, ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है, तो ये प्रेजेंट होता है। ये फ्लोरल डायग्राम बन गया। फ्लोरल फॉर्मूला आप देख ही चुके हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिलिएसियाई। स्टडी अबाउट द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इसमें मेडिसिनल प्लांट आते हैं,
मेडिसिनल प्लांट्स सच एज एलोई, एलोई आता है। फिर इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स सच एज ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, ये सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसमें वेजिटेबल्स भी आते हैं। वेजिटेबल्स में आपका आ जाएगा आपको जैसे एस्पैरागस, इसमें कॉलचिचिन प्लांट भी आता है। तो ये हाईली इकोनॉमिकल प्लांट है। सो वी हैव completed your topic. I hope you like it. Thank you very much and have a nice day.